चलिए जीनस लोग लेट्स बिगिन नाउ। अरे ये नीचे क्यों आ रहा है? बहुत ऊपर बैठे ना यहाँ पे अच्छे से। हाँ जी चलिए लेट्स बिगिन। तो मेरे ख्याल से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका था और क्या चल रहा था, मिसलेनियस एक्सरसाइज भी मैंने शुरू कर दिया था। वो शुरू नहीं हुआ, देखो ना इसका। What is the last thing we did? Can you please help me with that? What is the last thing that we did? क्या हो रहा है भाई? नहीं कहाँ तक हो गया था हमारा, ये बताइए बस मुझे। 7 तक किया था ये। Okay, fine. So I'll go for question number 8 onwards now. नहीं सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं सब। चलिए so let's begin now. Show that, let's begin. The question says, अब कुछ लोग ऑनलाइन रहेंगे तो they'll join in whatever. नहीं जिनको चाहिए वो आ जाएंगे, देख लेंगे, कोई बात नहीं। Show that the lines this and this contain the sides of an equilateral triangle. Find the area of this triangle. It's a half star question, I would say. It's a half star question. हमने बताया था लास्ट टाइम ये। चलो now first of all you just tell me what does this indicate. ये क्या इंडिकेट करता है? Well, this indicates two lines. These are pair of lines and they are passing through origin. सही है? And what does this indicate? ये क्या इंडिकेट करता है? This indicates one line, एक लाइन, ठीक है। And this line is not through origin. X plus y minus 10 is equal to 0. Okay, show that the lines this and this contain the sides of an equilateral triangle. Find the area of triangle. Okay, इस लाइन को अगर मैं देखूँ गौर से तो ये जो लाइन है, if I'll put x is equal to 0, I'll get y is equal to 10. The coordinates are 0, 10. If I'll put y is equal to 0, I'll get x is equal to 10. So this is going to give me 10, 0. सही है? Well, तो अगर इसका मुझे डायग्राम ड्रॉ करना है, if I want to draw the diagram, तो डायग्राम कुछ इस प्रकार से मिलेगा मुझे उसका, ठीक है। हाँ ये डायग्राम है उसका। ओहो, now if this is the line, quiet please, thank you। ये लाइन है वो x plus y is minus 10 is equal to 0 and these are the two lines which are passing through origin. Now they are forming an equilateral triangle. तो मुझे ये प्रूव करना है कि they are forming an equilateral triangle. तो ये जो लाइन दिया है हमको, इसका स्लोप क्या है जी? Let me compare this equation with ax plus by plus c is equal to 0. Can you tell me what is the slope of this line? The slope of this line, let me call this as m1, is equal to minus a upon b. मतलब होगा minus 1 upon 1, that is minus 1. सही है? Okay. And ये जो बाकी के दो लाइन्स हैं,
मतलब इस लाइन के साथ बाकी के जो दो लाइंस ब्लू कलर के लाइंस दिए हैं, ऐसा मान के चलते हैं कि मुझे उसका इक्वेशन ही नहीं है पता. So I want to find out the pair of lines which are pass the line which is making an angle of 60 degree. तो एंगल थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री और उसका मुझे स्लोप चाहिए. ठीक है, तो उसके लिए आई विल यूज द फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2. क्या होगा सब्स्टिट्यूशन करके बताइए. tan 60, क्वाइट प्लीज, सामने आ जाओ. तायर कम ऑन द सेकेंड बेंच प्लीज कम. तो ये बन जाएगा m1 इज -1 माइनस m अपॉन 1 प्लस -1 इंटू m. ये बन जाएगा tan 60 इज √3 इज इक्वल टू, आई थिंक इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सो दिस विल बिकम, माइनस साइन कॉमन लीजिएगा, m प्लस 1 divided by 1 minus m. I want to get rid of minus sign and all, so I'll just square and cross multiply. Square and cross multiply. तो क्या मिल जाएगा बताइए. This will become 3 into 1 minus m bracket square is equal to m plus 1 bracket square. सही है. What does that give me? Will give me, बोलो, 3 into 1 minus 2m plus m square is equal to m square plus 2m plus 1. 3m square minus m square is 2m square. Minus 6m minus 2m is minus 8m. And 3 minus 1 is plus 2 is equal to 0. I'll divide throughout by 2. तो क्या मिल जाएगा. m square minus 4m प्लस 1 इज इक्वल टू 0. नाउ m के जगह पर y अपॉन x लिख लीजिएगा. तो दिस विल गिव मी y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स y अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाई x स्क्वायर, दिस विल बिकम y स्क्वायर माइनस 4xy प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 0. एंड आई थिंक दैट्स व्हाट द इक्वेशन गिवन है, x स्क्वायर माइनस 4xy. हेंस प्रूव्ड. हो गया प्रूफ. बराबर है क्या. हेंस प्रूव्ड. नाउ इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन मुझे करना क्या है. इन द सेकेंड पार्ट आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल. इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए. नाउ अगर ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इफ दिस इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो व्हाट इज tan 60 इज इक्वल टू tan 60, बिकॉज ट्राइंगल, I would say here triangle OAB is an equilateral triangle. It's an equilateral triangle and therefore tan 60 क्या होगा. tan 60 is equal to opposite side H upon BM, H upon opposite side upon adjacent side, that is BM. सही है, isn't it? But tan 60 is equal to √3, so √3 is equal to H upon BM. सही है. Now that implies, what does this give me? BM is equal to H upon √3, isn't it? But we are given that BM is equal to AM and that is equal to, so BM is equal to half of AB. BM is equal to AB by 2, correct? Isn't it? So that is nothing but the base. So what is the base? BM, what is that? AB is the base. AB को अगर मैं base B बोल देता हूँ, तो what is base? B is equal to 2 times BM. But BM is equal to H upon √3. So this is 2 times H upon √3. The base is H upon √3. Correct ना? अच्छा, by the way, also this is the origin से ये जो perpendicular drop किया है, that height h is equal to modulus of c upon square root of a square plus b square, straight line.
isn't it? If I'll compare this equation with ax plus by plus c is equal to 0, तो ये क्या मिल जाएगा? Modulus of c, that is -10 upon square root of 1 square plus 1 square. Correct? So कुल मिलाकर क्या आएगा देखिए, therefore h is equal to 5 upon root 2. क्या आएगा? Sorry, 10 upon root 2, not 5, 10 upon root 2. This is h. And this is, therefore what is b is equal to? ये b है. So what is b is equal to? b is equal to 2 upon root 3 into h. h is equal to 10 upon root 2. तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा? तो बेस इज इक्वल टू, इसमें से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा और रूट 2 बचेगा, एंड दैट रूट 2 विल बिकम, इट विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 into 10. This is the base. And now what is the area of this triangle? Area of the triangle OAB is equal to half into base into height. That is equal to half into base is square root of 2/3 times 10 into height is 10 upon root 2. Well, this root 2 gets cancelled, and what will be the answer there? 100, or I can say 2 5s. So this is 50 upon root 3. These many square units is the answer. Is that clear? समझ में आ गया? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. 2 gets cancelled. What will be the answer there? 100. अरे बस 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 बस. अच्छा आ गया. धनश्री, गुड इवनिंग. धवल, गुड इवनिंग. सोहम, गुड मॉर्निंग. ओके, नो प्रॉब्लम. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. हाउ सर? क्यों, कैसे? हमारा एक मिनट, हमारा कल्चर है कुछ. क्यों? तो हमको जो सही लगता है हम बोले, हमको क्या बोलता है? हाँ, जो भी है व्हाटएवर, तो सही है उनके कल्चर. हम हैं. अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10. दिस इज अगेन अ स्टार प्रॉब्लम. दिस इज अगेन अ स्टार प्रॉब्लम. देखिए क्या दिया है यहाँ पे. फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस. बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर का. इसका मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बताया था. क्या बताया था डायरेक्ट फॉर्मूला? आई मीन, let me just call this as ax square. Let me call this as ax square plus 2hxy is equal to 0. So what is a is equal to here? 5. h is equal to 3 and b is equal to -1. ठीक है. अब इसका एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन, इट इज गिवन बाय, एंगल बाइसेक्टर्स आर गिवन बाय, बोलिए. मैंने आपको इक्वेशन दिया था एच एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स वाई माइनस एच वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सब्स्टिट्यूट, आई मीन 3x स्क्वायर माइनस 5 + 1 xy माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0. डिवाइड थ्रू आउट बाई 3, तो उसका आंसर क्या मिलेगा? दिस विल बिकम x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ठीक है, क्या मिलेगा? तो ये हमारा आंसर आ गया. दिस इज द आंसर. क्या मिलेगा बताइए? ये मेरा डायरेक्ट आंसर आ गया, बट आई वांट टू सॉल्व दिस. अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं. क्योंकि इफ़ दे आस्क यू इन द HSC एग्जाम तो आपको सिर्फ आंसर देके नहीं चलेगा. ठीक है, तो उसके लिए मुझे उसका डायग्राम चाहिए, एंड दिस विल बी द अप्रोप्रिएट डायग्राम फॉर द सेम. क्या डायग्राम है? ये डायग्राम है भाई. दिस इज अ डायग्राम. ये हमारा डायग्राम है. क्या दिया है?
देखिए these are the given lines, L1 and L2 are the given lines, और इसका ये एंगल बाइसेक्टर है, तो आई एम लुकिंग फॉर द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर. ठीक है, एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन है ये, मुझे फाइंड आउट करना है. अरे क्या चल रहा है प्लीज, क्या कैसे मतलब, ये जो इक्वेशन है 5x² प्लस 6xy माइनस y² इज इक्वल टू 0, लेट मी डिवाइड थ्रू आउट बाई x². क्या मिलेगा, 5 प्लस 6 टाइम्स y बाई x माइनस y² अपॉन x² इज इक्वल टू 0. देन आई विल कॉल y अपॉन x इज इक्वल टू m. तो क्या मिलेगा ये बताओ, and multiply throughout by -1, so this will become m² minus 6m minus 5 is equal to 0. इसके अगर मैं if I want to write down what is m1 plus m2, so this is minus b upon a, and what is m1 m2, it will be c upon a. So minus b upon a मतलब minus of minus 6 upon 1. So I'll get m1 plus m2 is equal to 6, and m1 m2 is equal to minus 5 upon 1. So m1 m2 is equal to minus 5. सही है, ठीक है. Now let the separate equations of the required lines be y is equal to m1x ये जो दो लाइन्स है ना, उनके सेपरेट इक्वेशंस है y is equal to m1x, y is equal to m2x. So I'll call it as m1x minus y is equal to 0, m2x minus y is equal to 0. ऐसे दोनों के इक्वेशन. So let me say let separate equations of given lines be y is equal to m1x and y is equal to m2x. Or in other words, m1x minus y is equal to 0, m2x minus y is equal to 0. ऐसे दो इक्वेशंस हैं. Let p x1 comma y1 be a point on angle bisector. ये on angle bisector, ठीक है. तो यहाँ पर अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो पी एम इज इक्वल टू पी एम बनेगा, क्योंकि सिमेट्री की वजह से. सो आई वुड सिंपली से हियर पी एम इज इक्वल टू पी एन. नाउ आप लोगों ने एक फार्मूला तो देखा होगा मेरे ख्याल से 11th स्टैंडर्ड में, इफ़ यू रिमेंबर दैट फार्मूला फॉर कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम, इफ दिस इज द लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज द पॉइंट पी हैविंग कोऑर्डिनेट्स x1 एंड y1. और यहाँ से अगर हमने ड्रॉ किया पी एम, so what is the formula for this PM is equal to, now modulus of ax1 plus by1 upon square root of a square plus b square. ये फॉर्मूला मुझे यूज करना है फॉर राइटिंग PM एंड PM एट द सेम टाइम ऑन द आइदर साइड्स हियर. क्या लिखेंगे बताइए, दिस विल बिकम, बोलो बोलो बोलो, कम ऑन. इक्वेशंस यहाँ पर आपके सामने हैं. ओहो, हाँ ये इक्वेशंस आपके सामने हैं यहाँ पे. अब बताइए क्या क्या लिखेंगे यहाँ पर. पी एम, व्हाट इज पी एम इज इक्वल टू, यार कम ऑन, यहाँ पर x के जगह पर x1 आएगा, y के जगह पर y1 आएगा. सो दिस विल बिकम m1x1 माइनस 1 इंटू y1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ m1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एन. उसी तरह से होगा m2x1 माइनस y1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ m2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. समझे क्या, इज दैट क्लियर? ठीक है. नाउ आई विल स्क्वायर ऑन आइदर साइड. इसको अगर हम स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ से क्या मिलेगा, स्क्वायरिंग, दिस विल बी गिविंग मी m1x1 माइनस y1 का स्क्वायर
अपॉन m1 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू m2 x1 माइनस y1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m2 स्क्वायर प्लस 1। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके अब मैं इसको सिंप्लीफाई करते समय क्या करूँगा कि मुझे फाइनल लोकस का इक्वेशन लिखना है ना। सो लोकस में आई विल रिप्लेस x1 y1 बाय x and y। सो व्हाट आई विल राइट हियर इज रिप्लेस x1 and y1 बाय x and y। क्या मिलेगा रे यहाँ पे? इफ आई यू नो जस्ट मल्टीप्लाई दिस, इट विल बिकम m2 स्क्वायर प्लस 1 इंटू m1 x माइनस y ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू m1 स्क्वायर प्लस 1 इंटू m2 x माइनस y ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, क्या मिलेगा यहाँ पे? जस्ट ओपन द ब्रैकेट्स हियर नाउ। सो m2 स्क्वायर प्लस 1, ये क्या बनेगा? m1 स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स m1 xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू m1 स्क्वायर प्लस 1 इंटू m2 स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स m2 xy प्लस y स्क्वायर। ओके, इस तरह से बनेगा ना। जस्ट ओपन द ब्रैकेट्स हियर, व्हाट आई गेट देयर? ब्रैकेट्स ओपन कीजिएगा, m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स m1 m2 स्क्वायर xy प्लस m2 स्क्वायर y स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स m1 xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा बताइए? अब इज इक्वल टू क्या आएगा? m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स m1 स्क्वायर m2 xy प्लस m1 स्क्वायर y स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स m2 xy प्लस y स्क्वायर। अब ये दोनों साइड में जो है उसको कैंसिल कर दीजिएगा, क्या आएगा? आई थिंक आई विल कैंसिल दिस y स्क्वायर ऑन आइदर साइड। करेक्ट? फर्स्ट टर्म ऑल्सो गेट्स कैंसिल, बाकी कुछ नहीं कैंसिल होगा, या कुछ नहीं कैंसिल होगा। ठीक है, सो आई विल जस्ट ट्रांसफर इट ऑन द अदर साइड। अब देखो यहाँ पे इस टर्म को देखिए और इस टर्म को देखिए, आई ट्रांसफर ऑन द अदर साइड। और ट्रांसफर करते करते मैं क्या करूँगा कि भाई 2m1 m2 xy कॉमन ले लूँगा, तो ब्रैकेट में आएगा माइनस m2 और ये आएगा प्लस m1। करेक्ट है? ठीक है, उसी प्रकार इफ आई ट्रांसफर, और इन दोनों को मैं इकट्ठा रखूंगा तो क्या बन जाएगा ये? आई थिंक इफ आई ट्रांसफर दिस विल बिकम प्लस y स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर आएगा m2 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर। ठीक है, प्लस अगर इनकी बात करूं मैं, इन दोनों की, तो यहाँ से भी मैं x स्क्वायर कॉमन ले लूँगा, दिस विल बिकम m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर। ठीक है, एंड इफ आई वांट टू टेक दिस एंड दिस टुगेदर, इसको भी ट्रांसफर करेंगे और यहाँ से माइनस 2xy अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ब्रैकेट में आएगा m1 माइनस m2। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। तो हर जगह पर जहाँ भी हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टर्म, इफ हर जगह पे आई विल डिवाइड थ्रू आउट बाय m1 माइनस m2, आई विल डिवाइड थ्रू आउट बाय m1 माइनस m2। तो यहाँ पे भी डिवाइड करिए m1 माइनस m2 से, यहाँ पे भी डिवाइड कीजिएगा m1 माइनस m2 से, यहाँ पे भी डिवाइड कीजिएगा m1 माइनस m2 से, एंड यू डिवाइड हियर ऑल्सो बाय m1 माइनस m2। क्या क्या मिलेगा बताइए मुझे? दिस विल गिव मी, यहाँ पे पूरा का पूरा चला जाएगा, दिस विल बिकम 2 टाइम्स m1 m2 xy प्लस, एक्चुअली ये बनेगा माइनस y स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से माइनस साइन बाहर आएगा तो m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर आएगा,
m1 plus m2 m1 minus m2 factorization okay, so this has to be minus y square. Same thing is going to happen over here also. This is x square and यहाँ पे cancel, 2xy is equal to 0. Is that clear? Now we have already, एक सेकेंड ना, कुछ गड़बड़ हो गया? हो गया यहाँ पर m1 माइनस m1 प्लस m2 रहेगा ना रे, यहाँ से क्या बचेगा, प्लस m1 प्लस m2 इंटू माइनस वाई स्क्वायर. ठीक है, क्योंकि इसका फैक्टराइजेशन m1 प्लस m2 होगा, राइट ना. यहाँ पे भी वैसे ही होगा, प्लस m1 प्लस m2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy is equal to 0. सही है. Now I have already calculated the expression for m1 m2. m1 plus m2 is 6 and m1 m2 is 5. तो उसको बस सब्स्टिट्यूट करना है. We have to substitute for m1 plus m2. क्या है m1 m2? m1 plus m2 is 6. m1 m2 is equal to 5. ठीक है, सब्स्टिट्यूट करिएगा, क्या मिलेगा बताइए. यहाँ पर दिस इज 5 to the 10xy minus 6y square plus 6x square minus 2xy. सो क्या बन जाएगा ये कुल मिलाकर, दिस विल बिकम therefore 6x square. ये माइनस 10xy बनेगा कह रहे, नहीं ऐसा ही है भाई. m1 m2 इज इक्वल टू माइनस 1 है ना, माइनस 6 है. नो इट इज प्लस 6. क्या हो गया गड़बड़, क्या हो गया, 6x स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर माइनस 10xy क्यों आएगा भाई. वन से क्या, m1 माइनस m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस 5 है क्या. कोई तो माइनस था, हाँ माइनस 5 है, करेक्ट. यहाँ पर ये माइनस 5 है तो ये माइनस 10 होगा. सो दिस विल बिकम 6x स्क्वायर माइनस 12xy माइनस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 0. आई डिवाइड थ्रू आउट बाई 6, तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर माइनस 2xy minus y square is equal to 0. That is the answer. Is that clear? And that's what the answer given. So no doubt this is a star problem. Undoubtedly. Direct वैसे फॉर्मूले से आ सकता है, but if you want to solve it in the HSC, it has to be a star problem. I'll mark it as a star problem. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 16. Question number 16. Well, this is again a star problem. क्या होगा ये बताइए मेरे को. Please read the question. What does it say? एक मिनट पानी पी लेते. बोलो क्या कैसे करेंगे इसको. Show that the combined equation of pair of lines with the origin, each making an angle alpha with the line this. बोलिए कैसे करेंगे. How do you go for that? Are you there? Are you all there? पता नहीं. चलिए क्या देंगे. Show that the combined equation of pair of lines through origin making an angle of alpha with the line this is.
आप मुझे बताइए कि ये जो लाइन दिया है, आई थिंक इट इज ऑफ द टाइप ax plus by plus c is equal to 0. So can you tell me what is the slope of this line? Minus a upon b. Minus 1 upon 1, that is minus 1. सही है? Okay. Now ये जो लाइन है, हमारा जो लाइन, show that the combined equation of pair of lines through origin angle with this line. तो ये एक तीसरा ही लाइन है. एक्चुअली हमारे जो रिक्वायर्ड लाइन्स है वो कैसे है? हाउ आर दीज लाइन्स? देखिए ये है पेयर ऑफ लाइन. पेयर ऑफ लाइन्स का इक्वेशन मुझे चाहिए एंड दिस x प्लस वाई इज इक्वल टू 0. एक ऐसा एक लाइन है विच इज यू नो ये लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0. तो हमारा जो लाइन्स है दे आर मेकिंग एंगल, इक्वल एंगल इसके साथ एंगल बना रहे हैं, ऐसे हमें बताया गया है. ठीक है. Now if it is passing through origin then I'll say theta is equal to alpha. Alpha is the angle and this is passing through origin. अगर ये origin से pass हो रहा है line, if this line is passing through origin then I would say it is y is equal to mx. Okay. और ये जो slope है जिसको मैं बोलूँगा m2 और ये slope m1 है, तो मुझे एक ही line चाहिए इसके साथ alpha angle वाली. So I'll go for the formula tan theta is equal to modulus of m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. That is equal to tan of alpha is equal to m1 is minus 1 and m2 I don't know, I'll call it as m, on 1 plus minus 1 into m. So let us simplify this now. अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो स्क्वायर विल बिकम tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेके निकाल दीजिएगा, दिस विल बिकम m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 अपॉन 1 माइनस m का स्क्वायर आएगा m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1. ठीक है. एंड आई विल जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई दिस नाउ. यहाँ पर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिल जाएगा बताइए? दिस विल बिकम tan स्क्वायर m स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा, हाँ m स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा माइनस 2m, ये भी tan स्क्वायर अल्फा प्लस tan स्क्वायर अल्फा माइनस m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 0. हमारे पास फॉर्मूला क्या है बाय द वे, देखते हैं. I'll take m स्क्वायर कॉमन फ्रॉम हियर. बताइए अगर मैं यहाँ से m स्क्वायर कॉमन लूँगा तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? tan स्क्वायर अल्फा माइनस 1. गुड. माइनस 2m अगर कॉमन निकालते, सॉरी अगर 2m को ही लिखे या माइनस 2m, माइनस 2m को कॉमन निकालते थे. So this will become 1 plus tan square alpha plus tan square alpha minus 1 is equal to 0. ठीक है. हमारे पास एक फॉर्मूला है cos 2 थीटा का. cos 2 थीटा is equal to 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. सही है कि नहीं है? तो आई विल डिवाइड हियर बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. किस चीज़ से डिवाइड करूँगा मैं? आई विल डिवाइड हियर बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा. आई विल डिवाइड दिस बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा. आई विल डिवाइड दिस ऑल्सो बाय 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, सॉरी 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा. भाई इसको मुझे रीअरेंज करना पड़ेगा. कैसे रीअरेंज करेंगे इसको बताइए मुझे. आई हैव टू मेक यूज ऑफ दिस फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन, या वेट मैं इसको 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा से डिवाइड करूंगा. तो ये क्या बनेगा? विल इट बिकम माइनस m स्क्वायर. ओके. यहाँ पे बनेगा माइनस 2m अपॉन
कॉस थीटा तुला म्हणायचं आहे. ओके, दिस इज -2m अपॉन कॉस 2 थीटा प्लस ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा फन, सो दिस विल बिकम -1 इज इक्वल टू 0. सही है. नो दैट इज इक्वल टू क्या बनेगा बताइए, दैट इज इक्वल टू क्या बनेगा बताइए. नो आई विल मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय -1, तो क्या मिलेगा m स्क्वायर प्लस 2m sec 2 theta -1 is equal to 0. Now you put y is equal m is equal to y upon x, तो ये क्या मिल जाएगा बताइए. हाँ, दिस विल बी +1, सब प्लस हो जाएंगे ना, ऑल आर गोइंग टू बी प्लस. So this will be, I'll substitute for that, this will become y square upon x square plus 2 sec 2 theta into y upon x plus 1 is equal to 0. सही है. And I'll multiply throughout by x square now, तो क्या मिलेगा बताइए. This is y square plus 2xy sec theta plus x square is equal to 0. Well, that is the answer there. Is this okay? और यही मुझे प्रूव करना था. sec 2 थीटा या 2 अल्फा जो भी है, इन्होंने इसको 2 अल्फा बोला था ना, हमने इसको थीटा की जगह पर अल्फा, तो मुझे यहाँ पर थीटा नहीं अल्फा ही बोलना चाहिए. अल्फा अल्फा. ओके, दैट्स व्हाट आई वांट टू प्रूव. देखिए, यही मुझे प्रूव करना है. ठीक है, तो दैट वाज अगेन स्टार प्रॉब्लम, और ये सब आर डी शर्मा लेवल के प्रॉब्लम्स हैं. तो इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 17. अगेन दैट्स अ हाफ स्टार प्रॉब्लम. शो दैट द लाइन दिस एंड द लाइंस दिस फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. कैसे शो दैट करेंगे. बोलिए कैसे करेंगे. प्लीज टेल मी हाउ डू यू डू दैट. दिस लाइन एंड दीज लाइंस दे फॉर्म दिस थिंग. एक काम करते हैं, देखिए, what I'll do is I'll take first of all this diagram. Please look at the diagram here. Consider this diagram. हाँ, अब ये लाइन है वो 3x, दिस इज द लाइन 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0. ये वो लाइन. ओके, और इसका स्लोप कितना आएगा, -3/4. -3/4 करेक्ट. ऑलराइट, अब मुझे बताइए, इफ आई कंसिडर दिस लाइन, इसका अगर मैं इक्वेशन कंसीडर करूँ फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल, इस लाइन के साथ 60 डिग्री वाला अगर मुझे कोई लाइन कंसीडर करना है, तो आई विल से tan थीटा और tan 60 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ I'll call this as I'll call this as simply m2. ठीक है, m2, तो ये बनेगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2. पता है ना ये फॉर्मूला. ओके, 60 डिग्री एंगल है, tan 60 मतलब कितना आता है, √3 इज इक्वल टू m1 नहीं है पता, माइनस m2 माइनस माइनस प्लस 3/4 1, हाँ माइनस सॉरी प्लस
m टाइम्स -3/4। सही है। अब बस मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, क्या बनेगा ये? Therefore this is √3 is equal to 4m + 3 upon 4 - 3m। ठीक है, अब कुछ नहीं है, इसको बस हमें को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो एंड स्क्वायर कर लो। स्क्वेयरिंग व्हाट वी गेट देयर, दिस विल बिकम 3 टाइम्स 3m - 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4m + 3 ब्रैकेट स्क्वायर। सही है। नाउ आई विल सब्स्टिट्यूट, क्योंकि ये जो इक्वेशंस है उसी टाइप के इक्वेशंस हैं, 3x + 4y एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ आई विल जस्ट सब्स्टिट्यूट हियर m इज इक्वल टू y/x। क्या मिलेगा? 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स y/x -4। ये माइनस कर दूँ इस तरफ लाके, या लेट इट बी, दिस विल बिकम 4 × y/x + 3 ब्रैकेट स्क्वायर। सही है। अभी मुझे इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना है। सो दिस विल बिकम 3 टाइम्स 3y - 4x ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y + 3x ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। तो ये अपॉन x स्क्वायर गेट्स कैंसिल, अपॉन x स्क्वायर गेट्स कैंसिल। जो मुझे प्रूव करना है वो वाला इक्वेशन मुझे मिल गया है, 3x + 4y ब्रैकेट स्क्वायर। दिस इज 3x + 4y ब्रैकेट स्क्वायर, इज दिस नॉट? तो इसको मैं लिखूंगा 3x + 4y ब्रैकेट स्क्वायर, और ये इस तरफ आएगा तो -3 टाइम्स। अब आप a - b ब्रैकेट स्क्वायर और b - a ब्रैकेट स्क्वायर सेम ही रहते हैं। सो दिस विल बिकम 4x - 3y ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू प्रूव। 60 डिग्री वाली यही दो लाइन्स है, दैट्स इट। समझ में आ गया? ओके, वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, डबल स्टार। दिस इज अ डबल स्टार प्रॉब्लम। ठीक है। नहीं, इसके बाद और एक 21st भी है ना, 20th एंड 21st। अब ये डबल स्टार प्रॉब्लम है, मतलब आप समझ सकते हो। नहीं, इजी क्वेश्चन है, मतलब वैसे इतना डिफिकल्ट नहीं है। विल ट्राई टू अंडर, थोड़ा लेंदी है, बाकी कुछ नहीं, इजी है। इट इज वेरी इजी, थोड़ा सा लेंदी है। देखिए, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ लेंस ऑफ परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम px1, y1 to the lines represented by this is। मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे these are the pair of lines passing through origin, yes or no? ये pair of lines है which are passing through origin. So let me say these are the pair of lines. ठीक है, thank you for silence there. Stop discussions. So these are the pair of lines. यहां पर एक पॉइंट है P, ये लाइन का इक्वेशन है ax² + 2hxy + by²। तो ये आई कॉल दिस एज द फर्स्ट लाइन L1, जिसका इक्वेशन एक्चुअल है y = m1x, और दैट इज नथिंग बट m1x। दिस इज L2, ये लाइन L2 है। यहां पर एक पॉइंट है P, x1, y1। ठीक है, यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर स्टॉप करता हूं, ये सिमेट्रिकली प्लेस नहीं है, ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, इट इज ओवर हियर x1, y1। यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर प्लॉट करूंगा, ड्रॉ करूंगा यहां से, and this is one more perpendicular. Let me call these perpendiculars as P1 and P2 respectively.
ठीक है, ये जो दूसरा लाइन है L2, इसका इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू m2x, और इन शॉर्ट दिस इज m2x माइनस y इज इक्वल टू 0. इज दिस क्लियर? ठीक है, ऑलराइट. नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द परपेंडिकुलर्स p1 p2. ठीक है, p1 इंटू p2, ये p1 है और ये p2 है, एंड दिस इज, अब यहाँ से ax स्क्वायर प्लस 2hxy, तो यहाँ से आप लोग मुझे बता सकते हो व्हाट इज m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन b, एंड व्हाट इज m1 m2 इज इक्वल टू a अपॉन b. सही है. सो p1 इज इक्वल टू क्या आएगा रे, यहाँ से अगर परपेंडिकुलर हम ड्रॉप कर रहे हैं p1, ये रहा p1, तो क्या होता है बताइए? इट इज मॉड्यूलस ऑफ, फॉर्मूला में लिखूँ अगर यहाँ पे, तो क्या आता है फॉर्मूला? ax1 प्लस by1, ऐसा होता है ना, प्लस c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला नहीं, यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, x के जगह पर x1 लिखना होता है, y के जगह पर y1 लिखना होता है, बाकी सब वैसे ही होता है. तो क्या आएगा बताइए मुझे, कम ऑन टेल मी. दिस इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ m1 x1 माइनस 1 टाइम्स y1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर. इज दैट क्लियर? ये रहा p1, और उसी प्रकार आप p2 भी लिख सकते हो डायरेक्टली, m2 x2 माइनस y2, x के जगह पर x1 और y के जगह पर y1, माइनस सॉरी m2 x1 एंड माइनस y1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ m2 स्क्वायर प्लस 1, माइनस 1 का स्क्वायर इज प्लस 1. सही है कि नहीं है? ओके, नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर्स, and I have to prove that it is given by this. So I have to find out what is p1 into p2. चलिए सिंप्लीफाई करते हैं. So I will say that this is equal to modulus of, this is m1 x1 minus y1, m2 x1 minus y1 upon square root of m1 square प्लस 1 इंटू m2 स्क्वायर प्लस 1. सही है? ओपन द ब्रैकेट्स प्लीज. क्या मिल जाएगा बताइए? दिस विल बिकम, दैट इज इक्वल टू p1 p2 इज इक्वल टू क्या आएगा? आई जस्ट ओपन दिस ब्रैकेट नाउ, ऐसे फिर ऐसे, क्या आएगा? m1 m2 x स्क्वायर माइनस m1 x1 y1 माइनस m2 x1 y1 प्लस y1 स्क्वायर. हाँ, this will become divided by square root of m1 square m2 square प्लस m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 1. सही है? नाउ वी ऑलरेडी नो दैट m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 प्लस m2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स m1 m2. करेक्ट ना? इफ आई एक्सपांड दिस, यही मिलेगा ना मुझे, m1 प्लस m2 ब्रैकेट स्क्वायर. तो लेट मी जस्ट इक्वेट इट देयर नाउ. क्या मिल जाएगा बताइए? दिस विल गिव मी मॉड्यूलस ऑफ m1 m2 x स्क्वायर. यहाँ से मेरे ख्याल से x1 y1 कॉमन ले लीजिएगा. दिस इज माइनस x1 y1 एंड विल बी m1 प्लस m2 प्लस y1 स्क्वायर, या फिर y स्क्वायर सिंपली, डिवाइडेड बाय क्या आएगा? m1 m2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ये m1 प्लस m2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स m1 m2, ओके, प्लस 1.
ठीक है, अब मुझे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. व्हाट इज m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन b, एंड व्हाट इज m1 m2 इज इक्वल टू a अपॉन b. हैवंट वी सीन दैट अर्लियर? क्या आपको ये फॉर्मूला पता नहीं है? m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन b एंड m1 m2 इज इक्वल टू a अपॉन b. बराबर है कि नहीं? चलिए सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं बस यहाँ पर. अब क्या है, तो दैट विल गिव मी व्हाट, दैट इज इक्वल टू, बोलिए, मॉड्यूलस ऑफ a अपॉन b m1 m2 सॉरी x स्क्वायर माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 2h अपॉन b x1 y1 प्लस y1 स्क्वायर, करेक्ट, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ क्या आएगा बताइए, m1 m2 मतलब a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2 इज माइनस 2h अपॉन b, उसका स्क्वायर आएगा 4h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर. यस, एंड देन माइनस 2 टाइम्स a अपॉन b. क्या आएगा बताइए? कमान कमान कमान, सिंप्लीफाई करो. क्या बनेगा? देखिए यहाँ पर फॉर द सेक ऑफ दिस थिंग आई विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय b, आई मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय b. तो डिनोमिनेटर में b स्क्वायर आएगा, स्क्वायर रूट के बाहर b आएगा और वो b इसके साथ कैंसिल हो जाएगा. यस और नहीं? पूरा कैंसिल हो जाएगा. सो व्हाट यू गेट देयर, बोलिए. ax1 स्क्वायर ना, क्या मिलेगा ये, ax1 स्क्वायर. तो दिस इज इक्वल टू ax1 स्क्वायर by1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या बनेगा ये, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर, नहीं, माइनस 2ab प्लस 4h स्क्वायर. मैं क्या करूँगा, प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखूँगा. यू नो, नहीं रे, क्या आएगा ये, प्लस b स्क्वायर प्लस 1 भी तो आ रहा था कहीं पे. हाँ, ये प्लस 1 हमने लिखा ही नहीं यहाँ पे. देखिए ये m1 m2 का हो गया, ये m1 प्लस m2 माइनस 2 प्लस 1 रह गया ना यहाँ पे, और प्लस 1 को भी मुझे b स्क्वायर और b स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा. सो दिस इज प्लस b स्क्वायर, जो अभी मैंने लिखा वो सही है. नहीं, प्लस b स्क्वायर इधर लिख लिया मैंने, दैट्स इट. तो दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर. क्या आएगा बताइए, दिस इज मॉड्यूलस ऑफ ax1 स्क्वायर प्लस 2hx1 y1 प्लस by1 स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस b ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर. वेल, दिस इज द आंसर. इज दैट क्लियर? इसमें कुछ डाउट्स है किसी को? सही में समझ आ रहा है? बट दीज आर स्टार प्रॉब्लम्स, आपको इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा. लेट मी टेल यू अगेन. ओके, एंड वी गो फॉर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर नाउ. नहीं, भी और भी कुछ क्वेश्चंस करूंगा मैं, जैसे 21st, उसके बाद 18th किया हमने, नहीं 18 नहीं किया. तो 18th वाला करेंगे, और ये 21st एंड 18 वो कर लेते हैं. ठीक है, चलिए. क्या दिया है यहाँ पे, शो दैट द डिफरेंस बिटवीन द स्लोप्स ऑफ द लाइन गिवन बाय दिस इज 2. या दिस मतलब ये जो दिया है वो, ये है तुम्हारा a, I'll say this is ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0. What is a here? Tan square theta
plus cot square theta. Well, what is 2h? 2h, देखो 2 है, xy है, बट h इज इक्वल टू माइनस tan थीटा. क्या कर रहे हो आप लोग? ठीक है. व्हाट इज b इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इज b, सो दिस इज साइन स्क्वायर थीटा. समझे क्या? सो व्हाट इज h इज इक्वल टू 2h इज इक्वल टू 2 tan थीटा और h इज इक्वल टू सिंपली माइनस tan थीटा. सही है. अच्छा, अब मुझे बताइए व्हाट इज m1 प्लस m2 एंड व्हाट इज m1 m2. फॉर्मूला के हिसाब से माइनस 2h अपॉन एंड, चलिए क्या क्या ले सकते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं. माइनस 2h माइनस 2 या प्लस 2 tan थीटा p. दिस इज a tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा अपॉन, क्या लिखो यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा. चलिए आगे बताइए. अब मुझे क्या करना है, दिस इज m1 प्लस m2, m1 m2 एंड show that the difference between the slopes I am looking for. So can I say that m1 minus m2, what is the formula which connects m1 minus m2, m1 plus m2 and m1 m2? That is the formula. क्या formula? क्या formula? It says m1 minus m2 bracket square is equal to a square माइनस 4 टाइम्स m1 m2. ठीक है. अब बस मुझे m1 प्लस m2 के लिए सब्स्टिट्यूट करना है. व्हाट इज m1 प्लस m2? 2 tan थीटा. 2 tan थीटा का मतलब होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा उसका स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स m1 m2. भाई पहले इसको देख लेते हैं. दिस इज साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है. और कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको. कैसे करेंगे? इसमें से एक साइन थीटा गया, वेल आई विल मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 2. ठीक है. नहीं, इसको ऐसे ही रख दो, नहीं तो क्या बनेगा, दिस इज 4, 2 का स्क्वायर इज 4 एंड दिस इज साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है. माइनस 4 इंटू, आई थिंक आई विल टेक साइन स्क्वायर थीटा कॉमन फ्रॉम हियर. यहाँ पे तो है, यहाँ पे नहीं है, तो एडजस्ट करना पड़ेगा. कैसे करेंगे? साइन स्क्वायर थीटा, एक मिनट. हाँ, ये कॉट है क्या कॉस है? दिस इज कॉस, दिस इज ओनली कॉस. हाँ, समझे क्या? तो नहीं नहीं नहीं, बाद में लिखेंगे इसको, अभी इतने जल्दी नहीं. तो क्या करेंगे यहाँ पे, आई टेक द एलसीएम यार. क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा रेज टू 4 डिवाइडेड बाय ये कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है. अब क्या करेंगे? और कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? नहीं. व्हाट आई विल डू इज, ये 4 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आई विल टेक कॉमन. आई फाइंड इट ओवर हियर एंड हियर ऑल्सो. तो अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस
यहाँ पर जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा रेज टू 4, ऐसा कुछ तो होगा. नाउ दिस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है, बराबर है क्या? तो ये कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा बाहर आएगा और यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा बाहर आएगा, तो क्या बचेगा अंदर? क्या बचेगा अंदर? दिस इज 4 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट को आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, तो बाहर. तो दिस इज 1 प्लस कॉस स्क्वायर, 1 प्लस कॉस स्क्वायर होगा. नहीं 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 नहीं, पाऊँ ये जो माइनस साइन है ना, ये इसको भी लगेगा, सिर्फ इधर लगाया मैंने, यहाँ पे माइनस साइन होगा और ये होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है, नाउ हियर साइन कॉस स्क्वायर थीटा गेट्स कैंसिल एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा which also gets cancelled and therefore the answer is 4. So m1 minus m2 bracket square is 4. स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आएगा मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 वो 2 ली तो. इज दैट क्लियर? दैट्स द आंसर. एनी डाउट्स अबाउट दैट? या नहीं, और एक क्वेश्चन करना है ना, लास्ट वाला 18th. दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन. या माइनस 2h अपॉन बी. वेरी गुड, शी इज आंसरिंग. धनश्री यहाँ पर आंसर कर रही है और तुम लोग मस्त बैठे, जरा आंसर करो. हाँ, यू आर ऑल्सो आंसर. चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला लास्ट क्वेश्चन हियर. दैट विल बी द लास्ट हियर. शो दैट, कैन यू सी, शो दैट द लाइंस दिस एंड दिस फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. फाइंड द एरिया एंड इट्स पेरीमीटर. ठीक है, नाउ दिस लाइन, ये जो दो लाइन्स है दे आर थ्रू ओरिजिन. ठीक है, अब इस लाइन की अगर मैं बात करूं तो शो दैट दिस लाइन्स एंड दिस फॉर्म. तो व्हाट वी डू इज, ये जो लाइन्स है थ्रू लाइन में एक ही लाइन कंसिडर करूंगा, y इज इक्वल टू mx, इसका स्लोप है m. अच्छा, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इन दोनों के बीच में जो एंगल थीटा होगा, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. ठीक है, नाउ हियर x प्लस y, सो I'll consider this in the form ax plus by plus c is equal to 0. So what is the slope of this line? Let me call this as m1, is minus a upon b minus 1 upon 1, that is equal to minus 1. So what will be tan theta is equal to modulus of m minus m1 upon 1 plus m into m1. ठीक है, नाउ tan ऑफ 60 इज √3, तो ये कितना आएगा? m प्लस 1 अपॉन 1 प्लस m इंटू माइनस 1. करेक्ट ना? क्रॉस मल्टीप्लाई स्क्वायर, दिस विल बिकम 3 इंटू 1 माइनस m ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू m प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर. So this will become 3 times m square minus 2m plus 1 is equal to m square plus 2m minus 1 plus 1. ठीक है ना? 3m square, that is 2m square, minus 6m minus 2m minus 8m. 3 minus 1 is plus 2 is equal to 0. Divide throughout by 2. मेरे ख्याल से 18 वाला सॉल्व किया है क्या हमने? नहीं. m square minus 4m plus 2. Put m is equal to y by x. हाँ, 4m plus 1 is equal to 0. Put y is equal, m is equal, this is y square upon x square minus 4 times y upon x plus 1. Multiply throughout by x square. क्या मिलेगा? y square minus 4xy plus x square is equal to 0. या बट ये जो है ये सिर्फ फर्स्ट पार्ट था. फाइंड इट्स एरिया एंड पेरीमीटर. एरिया एंड पेरीमीटर भी चाहिए अपने को इसका. भाई कैसे करेंगे? नाउ वेट. अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है
प्लीज चेक हियर, अगर ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, लेट्स से दिस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये लाइन है, ओके, एंड देयर आर टू लाइंस, अब दो लाइंस जो है वो एक लाइन इस तरह से होगा, समझो, एक सेकंड, काहे के लिए मैं कर रहा हूँ, जो लाइन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, देखिए, ओके क्या आएगा ये बताइए। देखो यहाँ पे अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, हाइट इज h एंड दिस इज b/2, राइट, बेस का हाफ है ये, तो व्हाट विल बी tan 60, tan 60 is opposite side upon adjacent side b/2, but tan 60 is √3 is equal to 2h upon b, ठीक है, therefore what is b is equal to 2h upon √3 and that is equal to each side. Is that each side? Okay, now perimeter क्या होगा फिर इसका, 2b rather 3b, 3b ना, 3 times base each side, so 3 into 2h upon √3 that is equal to 2√3 times h. अच्छा, एरिया क्या होगा उसका, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो क्या आएगा फिर ये, बेस हाफ इंटू बेस हमने कितना कैलकुलेट किया, 2h अपॉन √3 इंटू हाइट, सो दिस 2 गेट्स कैंसल एंड इट इज h स्क्वायर अपॉन √3, ये तो उसके फॉर्मूले हो गए। नाउ इफ आई वांट टू फाइंड आउट h, अगर मुझे h चाहिए तो h कैन बी फाउंड आउट by modulus of root c, rather c upon square root of a square plus b square. Now that is equal to c कितना है यहाँ पे, compare this equation, ax plus by plus c is equal to 0, तो c is minus √6, so I'll say minus √6 divided by square root of 1 square plus 1 square, that is √2, so that will be √3. So h is equal to √3, अगर h √3 है तो पेरीमीटर कितना आ गया, 2√3 into √3 is 6 units, and एरिया कितना आएगा, h square that is 3 upon √3 is √3 square units. Is this clear? Well, that completes this chapter and hence I think ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था. I think we'll stop here today. Okay.